آج ہم اکٹھے کچھ وقت کتاب مقدس کی تعلیمات کا مطالعہ واضح عنوان کیوں شیطان سبت کے دن کو ختم کرنا چاہتا تھا سے کرتے ہیں۔ خدا کے سب آئین کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہم کیسے خدا باپ اور خدا ماں کا خوف مانیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان بالکل نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حکم مان کر خدا کا خوف مانیں۔ دانیال 7 باب میں خدا کے کلام کے مطابق وہ شیطان ہی ہے جو حق تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندراج دیکھیں تو شیطان ہی خدا کے لوگوں کو ناحق لعن طعن کرتا ہے۔ اس کی چالوں میں سے ایک سبت کے دن کو ختم کرنے کی تھی۔ کیوں شیطان سبت کا دن ختم کرنا چاہتا تھا؟ آپ سبت کا دن خالق کی قوت کی یادگاری کا دن ہے۔ تمام انسانوں کو خالق کی قوت کی یادگاری کے لیے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسا کر کے وہ خدائے الہیم کے بارے میں سیکھتے ہیں، یعنی خدا باپ اور خدا ماں کے بارے میں، جنہوں نے آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا تھا۔ تاہم شیطان بالکل نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ چونکہ وہ نہیں چاہتا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سبت کے دن کو اتوار سے بدل دیا، جو سورج دیوتا کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا، تاکہ لوگ سبت کا دن نہ مان سکیں۔ یوں شیطان سب انسانوں کو خدا کی عبادت کی بجائے سورج دیوتا کی عبادت کرنے کے لیے بھٹکا رہا ہے۔ جیسے کہ نجات کا دن تیزی سے نزدیک آ رہا ہے تو آسمانی باپ اور آسمانی ماں سب انسانوں کو سورج دیوتا کی عبادت جاری رکھے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے متی باب 24 میں خدا نے نبوت کی تھی کہ جب انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوگی اور اس کے پتے نکلیں گے تو وہ آئیں گے۔ ہم چونکہ خدا کے لوگ ہیں تو جب ہفتے کا دن آئے تو ہمیں محض یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے خیال سے آج سبت کا دن ہے۔ اس کی بجائے ہمیں سوچنا چاہیے آج ہمارے خالقوں خدا باپ اور خدا ماں کی عبادت کا دن ہے۔ سبت کے دن جب بھی ہم خدا کے سامنے عبادت کے لیے آئیں تو ہمیں یوں پرعزم ہونا چاہیے کہ میں ہرگز غیر معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں صرف سچے خدا کی عبادت کروں گا جس نے آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا تھا۔ کتاب مقدس کے کرداروں میں سے ایک داؤد تھا جسے حقیقی حکمت و معرفت حاصل تھی کہ کیوں خدا نے انسانوں کو اپنے احکام دیے تھے۔ اسی لیے کتاب مقدس میں درج ہے کہ داؤد خدا کے احکام کو کندن سے بھی زیادہ قیمتی اور قابل قدر مانتا تھا۔ ہمیں فقط اتنا ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ سبت کا دن ہفتے کا 7واں دن ہفتہ ہے اور خدا نے ہمیں اس دن پر برکت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر سبت کا دن محض کم اہمیت والا ایک عام دن ہوتا تو کیوں شیطان سب انسانوں کو ہزاروں سالوں سے گمراہ کرنے کے لیے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا؟ وہ کیوں خدا کے سب احکام بشمول سبت اور فسح سے چھٹکارا پانے کے لیے اتنی محنت سے کام کرتا؟ اس کا جواب زبور باب 119 آیت 127 سے مل سکتا ہے۔ اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ داؤد کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میرے دل کے موافق ایک آدمی ہے۔ اگر ہمیں داؤد کی مانند اپنے اندر ایمان کو مستحکم بنانا ہوتا تو کیا خدا ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی خدا کے دل کے موافق آدمی ہیں؟ داؤد کتنا زیادہ خدا کے احکام کی قدر کرتا اور انتہائی درجے تک انہیں دھیان میں رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ انہیں کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا، یعنی اس خزانے سے بھی زیادہ جسے اس دنیا کے لوگ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ بعض لوگ شاید یوں خود کلامی کرتے ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سبت اور فسح مناتے ہیں، ہم کیوں دے یقین دیتے اور خوشخبری کی منادی کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ ہم خدا کے فرمانوں، قوانین اور آئین کو عزیز رکھتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم قانون پرست ہیں؟ نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کی سچائی یہ ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت رکھتے اور ان کا خوف مانتے ہیں۔ زبور کی کتاب باب 50 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔
सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमानों जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, मेरी पाक उम्मत जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। खुदा की उम्मत वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के अहकामों आइन को मानकर उनके साथ अहद बांधा है। खुदा ने कहा, मेरे उन सब लोगों को जमा करो। आप सब, आपके ख्याल से शैतान क्यों सब्बत के दिन को खत्म करना चाहता था? आसमान में यह शैतान ही था जो ऐसा सरगना था जिसने सब इंसानों को गुनाह की तरफ ले जाकर खुदा से दूर करने के लिए बहकाया था। नतीजतन उसी की वजह से हम आसमान से निकाले गए और इस जमीन पर फेंक दिए गए। खुदा ने एक बार फिर हमारे लिए राह खोली ताकि हम उनके आईनो फरमान हासिल कर पाएं। इन आईनो अहकाम से खुदा हमें तौबा करने का मौका बख्शते हैं। अगर खुदा के लोग खुदा के अहकाम मानकर और फरमाबरदारी करके खुदा की मर्जी पूरी करें तो वो मुकम्मल तौबा कर पाएंगे और आखिरकार वो एक बार फिर खुदा के नजदीक आ सकेंगे। शैतान इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। चुनाचे इसकी तकमील के लिए खुदा के लोगों की राह को बंद करने की गर्ज से उसे क्या करना था? खुदा की कायम करदा शरीयत को तब्दील करने के लिए उसने मुसलसल कई बार कोशिशें की। सब इंसानों को खुदा के आइन की फरमाबरदारी से रोकने के लिए उसने ऐसा किया था। इसीलिए सब्बत का दिन गायब हो गया और इतवार की इबादत से बदल दिया गया था। फसा भी गायब हो गई और क्रिसमस से बदल दी गई थी। बाद में अजीबो गरीब नए त्यौहार आ गए, जैसे कि जी उठने के दिन को रोटी खाकर मनाने की बजाय रंगीन अंडों और खरगोशों के साथ जी उठने का दिन मनाने के त्यौहार आ गए। खुदा ने अपने लोगों से कहा, मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने मेरे फरमानों, कवानीन और आइन के जरिए कुर्बानी से मेरे साथ अहद बांधा है। इसलिए वो क्या है जिसका खुदा ने सब्बत के दिन के जरिए से अपने लोगों को देने का वादा किया था? खुदा ने हमसे वादा किया कि सब्बत निशान होगा, जिसमें खुदा ने ऐलान किया कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा खुदा हूं। यही वजह है कि शैतान सब्बत के दिन की ऐसी हकारत करता है। जब खुदा के लोग सब्बत को पाक मानते हैं तो शैतान वाकई इससे नफरत करता है। उसकी नफरत इस हकीकत से बढ़ती है कि हर बार खुदा के लोग इस दिन को पाक मानकर ये शौर पाते हैं कि जिन्होंने आसमान और जमीन और इनमें मौजूद सब चीजों को पैदा किया वो हमारे एलोहिम खुदा यानी खुदा बाप और खुदा माँ है। इसीलिए वो सब्बत के दिन की सच्चाई को इस झूठे इसरार से नाकाबिल फहम बना देता है कि सब्बत सिर्फ यहूदियों के लिए है। आखिरकार उसने इतवार की इबादत कायम की, जो सूरज की ताजीम का दिन है, जो कि किताब मुक़द्दस में भी नहीं है, और लोगों को ऐसे हफ्तावार त्यौहार को ले गया जिसमें वो सूरज देवता की इबादत करता है। वजूहात में से ये भी एक वजह है कि क्यों शैतान ने सब्बत के दिन को निशाना बनाया था। ताहम ऐसा करने की एक और वजह भी उसके पास थी। पैदाइश की किताब के 3 बाब के मुताबिक ये दर्ज है कि शैतान खुदा माँ का मोहलिक दुश्मन है और मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सब्बत पाक दिन है जिसे हम खुदा बाप और खुदा माँ जो खालिक हैं के जलाल में दाखिल होते हैं। सब्बत वो दिन है जिसके जरिए हम खुदा बाप और खुदा माँ की इबादत और ताजीम कर सकते हैं। इस लिहाज से कोई मुमकिन तरीका नहीं कि शैतान कभी भी इस दिन का आला एहतराम करे। शैतान लोगों को आसमानी बाप और आसमानी माँ से भड़काता है ताकि लोग उसकी बनाई गुमराही की राह पर चल सकें। फिर भी उसका मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि वो लोग जो इतवार की इबादत करते थे और इंसानी अहकाम मानते थे, सब्बत को मुकद्दस मानकर खुदा के अहकाम मानने लगे थे। यूं शैतान की चाल जाहिर होने लगी और उसकी असलियत रफ्ता रफ्ता आया हो गई। किसने उसकी शनाख्त जाहिर की थी? मसीह खुद आए और ये काम किया था। अगर खुदा एलोहिम यानी खुदा बाप और खुदा माँ इस जमीन पर दूसरी बार ना आए होते और हमारे लिए राह ना खोलते तो हम खुदा से मुंह मोड़कर और सूरज देवता की इबादत करते हुए
اب भी इस दुनिया में रह रहे होते और गलत फहमी से सोचते रहते कि हम असल में खुदा की इबादत कर रहे थे। इसकी बुनियाद पर खुदा ने क्या कहा था जब उन्होंने हमें ईद फसा बख्शी थी? उन्होंने कहा था, मेरी तरफ रजू लाओ। जब हम मलकी के तौर में बख्शे गए, दया की और इसके साथ साथ हदियों के मामले पर गौर करें तो मलाकी की किताब में यह नबुवत है कि जब खुदा से पूछा गया था कि ए खुदावंद, हम किस बात में आपकी तरफ रजू हों, तो उन्होंने कहा, दया की और हदिया में। क्यों खुदा ने हमें ये अहकाम दिए थे? क्या ये अहकाम हम सब के लिए खुदा की तरफ रजू लाने और निजात पाने में खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं थे? इसीलिए ज़बूर बाब 50 में ये लिखा है कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। चूंकि आज का उन्वान है, क्यों शैतान सब्बत दिन को खत्म करना चाहता था, तो अब हम अपनी तवज्जो सब्बत दिन के मुतालिक मुताला करने पर मरकूज करते हैं। पैदाइश बाब 2 आयत 1। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। यहाँ जब भी खुदा का जिक्र आता है तो इससे मुराद एलोहिम खुदा है। इस आयत में ये लिखा है कि खुदाए एलोहिम ने 7वें दिन को बरकत दी और इसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये खालिकों की कुव्वत की यादगारी का दिन है। सब्बत का दिन जिसे हम आज मना रहे हैं, इस बात को तस्लीम करने का दिन है कि सब इंसानों और हर चीज को खुदा बाप और खुदा माँ ने पैदा किया था। ये सब्बत का दिन होता है जब हम खुदा एलोहिम की, जिन्होंने सब चीजें पैदा की थीं, इबादत करते हैं। इसलिए क्या आप सोचते हैं कि हक ताला के खिलाफ खड़े होने वाला शैतान सब्बत के दिन को पसंद करेगा? वो किसी भी तरह से इसे पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो कड़वे दाने बोना जारी रखता है। खुदा के अहकाम ऐसे निशान वाले खंबे हैं जो हमें खुदा की तरफ रजू लाने को ले जाते हैं। ताहम शैतान इन निशान वाले खंभों को उल्टाता रहता है जहां लोगों की रहनुमाई सब्बत मनाने को की जाती है, और वो इसे मिटाता है और इसकी जगह तवार की इबादत लिख देता है। जहां लोगों की रहनुमाई फसा मनाने को की जाती है, वो इसे मिटाता है और इसकी जगह क्रिसमस लिख देता है। वो मुसलसल निशान के खंभे बिगाड़ता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो खुदा माँ का नबुवती दुश्मन है। खुदा ने नबुवत की थी कि औरत की औलाद की तरफ से हमला शैतान के लिए जानलेवा होगा, ताहम वो उन्हें सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि ये नबुवत की गई है तो हमारा मुकद्दर फतह-याबी है। हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए कि वो खुदा ही हैं जो हमेशा आखिर में हमें फतह को ले जाते हैं। सब्बत जिसे अब हम मना रहे हैं, उसे हमें कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखना चाहिए। अगरचे हमें घर पर कोरोना वायरस के बायस ऑनलाइन इबादत करनी पड़े, पर सब्बत नहीं बदलता है। चाहे हम वबा में हैं या नहीं, 7वां दिन हमेशा 7वां दिन रहता है। खुदा ने उस दिन को बरकत दी और उस दिन को मुकद्दस ठहराया। गुनाह की वजह से सब इंसानों का मुकद्दर मौत है, ताहम सब्बत का दिन मानकर हम खुदा की पाकीज़गी के करीब होते हैं। अगरचे ऐसा हमारे साथ होता है, पर हम मुकम्मल तौर पर इससे वाकिफ नहीं हैं। इसके बावजूद अब तक हर सब्बत के दिन पर खुदा हमें बदल रहे हैं और हमारे ईमान की बाप और माँ की तरफ रहनुमाई जारी रखते हैं। इसीलिए खुदा हमें क्या करने को कहते हैं? याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना। इब्तिदा से अंजाम की खबर देने वाले खुदा हमें वादे का वो कलाम बख्शते हैं जो हमें उनकी निजात को ले जाता है। खरूज बाब 20 आयत 8। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। ये किसका कलाम है? ये खुदा का कलाम है। खुदा ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। खुदा की भेड़ें खुदा की आवाज सुनती हैं और शैतान की भेड़ें शैतान की आवाज सुनती हैं। हर कोई अपने अपनी मालिक की सुनता है। हमारी रूहों के मालिक खुदाए एलोहिम यानी खुदा बाप और खुदा माँ हैं, जिन्होंने आसमानों और जमीन और इनकी सब चीजों को पैदा किया था।
सब्बात का दिन जिसकी रहनुमाई खुदा एलोहिम करते हैं, इसमें शामिल होने वाले यकीनन मुबारक ठहरेंगे। वो खुदा बाप और खुदा माँ की इबादत करते हैं और वो खुदा बाप और खुदा माँ का खौफ मानते हैं। नीज वो खुदा बाप और खुदा माँ को जलाल देते हैं। खुदा एलोहिम खालिक ने कहा, याद करके तू सब्बात का दिन पाक मानना। लिहाजा जो सारे दिल से सब्बात के दिन पर इबादत करते हैं, वो हरगिज खालिकों यानी खुदा बाप और खुदा माँ का इनकार नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि अगर वो उनका इनकार करें तो उन्हें एलोहिम, खुदा बाप और खुदा माँ, जिन्होंने आसमानों और जमीन और इनकी हर चीज को बनाया था, से ताल्लुक रखने वाली हर चीज का इनकार करना होगा। इमसाल की किताब के 8वें बाब से आयात खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सुलेमान ने खुदा को सब चीजें बनाते हुए देखा था। इमसाल बाब 8 आयत 22। खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सनतों से पहले मुझे पैदा किया। ये लिखा है कि खुदा ने आसमानों और जमीन को बनाने से पहले सुलेमान को पैदा किया था। आयत 23, मैं अज़ल से यानी इब्तिदाही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि जमीन थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। यहाँ जहां भी मैं का जिक्र आया है, उससे मुराद सुलेमान है। आयत 25, मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खल्क हुई, जबकि उसने अभी ना जमीन को बनाया था, ना मैदानों को, और ना जमीन की खाक की इब्तिदा थी। जब उसने आसमान को कायम किया, मैं वहीं थी। जब उसने समुद्र की सतह पर दायरा खींचा, वो कहाँ था? वो हर उस लम्हे का चश्मदीद गवाह था जिस पर खुदा सब चीजें तख्लीक कर रहे थे। सुलेमान वहां मौजूद था जब उसने ऊपर अफलाक को उस्तवार किया और गहराव के सोते मजबूत हो गए। जब उसने समुद्र की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े। जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारीगर की मानिंद मैं उसके पास थी। किताब मुक़द्दस के न्यू किंग जेम्स तर्जमे में ये आयत जिसमें कारीगर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका तर्जमा यूं किया गया है कि जिसने खुदा के पास परवरिश पाई। बस इसे यूं भी पढ़ा जा सकता है कि मैं जिसने खुदा के पास परवरिश पाई थी उसके पास थी, और मैं हर रोज उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमा रहती थी। आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में थी। ये लिखा है कि जब खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था, तब सुलेमान खुदा के पास ऐसे वजूद के तौर पर मौजूद था जिसने खुदा के पास परवरिश पाई थी। तो फिर वो खुदा कौन है जिन्हें सुलेमान ने सब चीजें पैदा करते देखा था? पैदाइश की किताब बाब 1 आयत 26 से देखते हैं कि वो कौन है। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। यहाँ खुदा पहले दिन से शुरू करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे दिन तक आसमानों और जमीन और इनकी हर चीज को पैदा कर रहे हैं। लातादाद आसमानी रूहानी मखलूकात भी खुदा की हैरानकुन तख्लीकी कुव्वत की गवाह थीं। उन्होंने खुदा की आवाज सुनी, जिन्होंने ऐलान किया कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर डिंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा की सूरत से जिनका जिक्र बतौर हम के मिलता है, नर और नारी दोनों पैदा किए गए थे। हम इसे फोटोकॉपी की मशीन की मिसाल से भी समझ सकते हैं। फर्ज करें कि हमने नकलशुदा दस्तावेज की असल कॉपी बिल्कुल नहीं देखी, ताहम जब हम नकलशुदा कागज पर मौजूद छपाई की सूरतों को देखें तो क्या हम साफ तौर पर शनाख्त नहीं कर पाते कि असल कॉपी कैसे नजर आती होगी? हम फौरन समझ सकते हैं। अगरचे इस आयत में खुदा ने वजाहतन लफ्ज नकल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स उन्होंने इजहार बयान अपनी सूरत पर इस्तेमाल किया, जो जदीद इस्लाम में नकल की मानंद कहने जैसा है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि खुदा ने इंसानों को हुबहू अपनी नकल पर पैदा किया है? खुदा की सूरत पर नर और नारी पैदा किए गए थे। इसलिए हम वाज़े समझ सकते हैं कि खुदा की असल सूरत में वही है, जिसमें खुदा की नर सूरत भी है और खुदा की नारी सूरत भी है। सब लोग इस अमर का ऐलान करते हैं
کہ خدا کی نر صورت خدا باپ ہے، تو پھر ہمارے لیے خدا کی ناری صورت کو کیا پکارنا فطری ہوگا؟ ہمیں انہیں خدا ماں پکارنا چاہیے۔ پہلے دن کی تخلیق، دوسرے دن کی تخلیق، تیسرے دن کی تخلیق، چوتھے دن کی تخلیق، پانچویں دن کی تخلیق اور چھٹے دن کی تخلیق سب خدا باپ اور خدا ماں نے کی تھی، جو خدا الہیم خالق ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 1 میں خدا جنہوں نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، یقینی طور پر ان کے دستخط کی مانند الہیم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خدا نے یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سب اکیلے نہیں کیا تھا، اسی لیے انہوں نے لفظ ہم پر بار بار زور دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو پھر کیا اس امر کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ خدا باپ اور خدا ماں واقعی موجود ہیں؟ خدا باپ نے صحیفوں میں بیان کیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خوفزدہ بات خدا ماں کا ظہور ہے۔ کسی بھی دوسرے کی نسبت شیطان یہ بہتر جانتا ہے کہ ایک بار خدا ماں ظاہر ہو گئی تو انسان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے خدا ماں کی پہچان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے لیے رکاوٹ بننے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھتا ہے۔ لوگوں کو خدا باپ اور خدا ماں کی عبادت سے روکنے اور لوگوں کے دلوں کو سورج دیوتا کی طرف مائل کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے واسطے اس کے استعمال کیے گئے کئی طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اتوار کی عبادت کروائے۔ مسیحیت کی تاریخ سے بھی ہم اس معاملے کا واضح ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم پہلے خدا کے کلام سے بنائی گئی روحانی دنیا کے معاملے کو سمجھیں۔ آپ سب اسی لیے آسمان کی راہ کشادہ نہیں کہ بہترے لوگ دیکھ اور سمجھ سکیں، بلکہ تنگ راہ ہے۔ وہ جو ہماری رہنمائی اس تنگ راہ کو تلاش کرنے میں کرتے ہیں وہ ہمارے خدا ہیں۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے مجھے کھینچ نہ لے۔ یہی ایک حقیقت کہ ہم سب یہاں ہیں ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہم ہی ہیں جن کی خدا کو فکر ہے۔ خدا نے ہی ہمیں یہاں اس جگہ پر آنے کی اجازت دی ہے۔ ہم شاید سوچیں کہ ہم یہاں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی نے کہا تھا آئیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تاہم ہمارے یہاں آنے کی یہی وجہ نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے خدا کی بلاہٹ اونٹ کے سوئی کے ناکے سے گزر جانے سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اس لیے ہمیں بخشی گئی اس راہ کی ہمیں حقارت نہیں کرنی چاہیے۔ آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو جانے تک کیا ہمیں اس قابل قدر راہ پر چلنا نہیں چاہیے؟ خالقوں کی قوت کی یادگاری کے دن سبت کو منانے والے سیون کے خاندانی اراکین کی خدا آنکھیں کھولتے رہتے ہیں، اور ہم مزید سوچیں کہ الوہیم کا مطلب خداؤں ہے، تو پھر کس وجہ سے نر اور ناریاں خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے؟ اگر ہم خدا کی نر صورت کو باپ پکارتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی ناری صورت کو کیا پکارنا چاہیے؟ یوں خدا ہمارے کڑے نظریات کو توڑنے کے لیے راہ کھول رہے ہیں تاکہ ہم ایسی دنیا میں داخل ہو جائیں جسے واقعی خدا نے بنایا ہے۔ شیطان کڑے نظریات بناتا اور لوگوں کے لیے کتاب مقدس کی درست تفسیر کو واضح دیکھنے کے موقع کو بند کرتا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ تمہیں دی گئی ہے مگر انہیں نہیں دی گئی۔ سبت کا دن جسے ہم اب منا رہے ہیں فقط اس لیے اہم نہیں کہ یہ 7واں دن ہے۔ جب ہم سبت کے دن کے مفہوم کو احتیاط سے دیکھیں تو ہم شیطان اور ہماری روحانی ماں جو خالق ہیں کے درمیان جنگ پاتے ہیں، اور شیطان کی اولاد اور عورت کی باقی اولاد کے درمیان جنگ بھی۔ اسی لیے عورت کی باقی اولاد آخر تک مکمل طور پر خدا کے احکام مانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کے احکام مانے جاتے ہیں تو خدا کی طرف رجوع لانے کی راہ کھلتی ہے۔ ہم خروج کی کتاب باب 31 آیت 13 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔
वो हुक्म जो हमें खुदा को जानना बख्शता है वो सब्बत का दिन है। तो फिर आपके ख्याल से क्या शैतान चाहेगा कि हम दुरुस्त तौर पर खुदा को जानें? नहीं, वो नहीं चाहेगा। इसीलिए उसने सब्बत के दिन को इतवार की इबादत में बदल दिया है। हम शायद सादगी से सोचें, चूंकि ये दुरुस्त है कि सब्बत का दिन 7वां दिन है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसे मानूं तो मैं ज्यादा मुबारक हो सकता हूं। ताहम मामले की सच्चाई ये है कि रूहानी दुनिया में ये एक हैरत अंगेज काम है। हमें जरूर खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को शैतान के हवाले कर दूं या खुदा की रहनुमाई में। हम हमेशा ऐसे दो राहे पर होते हैं। हमें ये सोचने पर मजबूर करने की गर्ज से कि खुदा के अहकाम इतने अहम नहीं हैं। शैतान हर तरह के बज़ाहिर माकूल नजरिए पेश करता है और लोगों को किताब मुक़द्दस के कलाम की निस्बत इनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा करवाता है। आप सब, दाऊद दाना था, लेकिन क्या सुलेमान बादशाह भी दाना नहीं था? खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है। ये उस सारी दानाई का नतीजा था जो अक्लमंद बादशाह सुलेमान ने पीछे छोड़ी थी। खुदा हमें सब्बत का दिन मानने का हुक्म देते हैं, मगर ये शैतान ही है जो लोगों को सब्बत का दिन मानने से रोकता है। वो हमारी याददाश्त से सब्बत के दिन को मिटाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी दिन इबादत करना ठीक है। खुदा ने कहा कि सब्बत का दिन खुदा और हमारे दरमियान एक निशान है। नीज उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सब्बत के दिन से हम खुदा को जानने लगते हैं। सब्बत का दिन ऐसा दिन है जब हम खुदा के बारे में सीखते हैं, लेकिन शैतान हर मुमकिन तरीके से इस काम में रुकावट बनता है। इस काम के लिए वो बज़ाहिर माकूल लगने वाले वजूहात पेश करता है, ताहम हमें उन फर्जी नजरियात की जानिब झुकने की जरूरत नहीं है। दूसरे तिमुथियुस बाब 4 से किताब मुक़द्दस खोलते हुए हम एक और आयत देखते हैं। बाब 4 आयत 1 से पढ़ते हैं। खुदा और मसीह यसू को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर। यहाँ खुदा हमें अपने कलाम की मुनादी करने को कहते हैं। ताहम सारी दुनिया शैतान की बातों की मुनादी कर रही है। हमें खुदा के कलाम की मुनादी करनी है, जिन्होंने कहा नेको बद की पहचान के दरख्त से कभी ना खाना, जबकि दुनिया शैतान की बातों की मुनादी कर रही है, जिसने कहा इससे खाना ठीक है। यहाँ जैसा कि कहा गया है कि कलाम की मुनादी कर, तो इसका मतलब है कि हमें खुदा के कलाम की मुनादी का हुक्म दिया गया है। खुदा के कलाम में से हम कहाँ इतवार की इबादत करने और क्रिसमस मनाने का दस्तूर ढूंढ सकते हैं? वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। आयत 3, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम के बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जे होंगे। इसीलिए अगर हम इस किस्म के लोगों के साथ ताल्लुक रखें और इनसे बातचीत करते रहें तो हम अपनी बसीरत गंवा लेते हैं। सब्बत का दिन हफ्ता हो या इतवार, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस किस्म की सोचें हमारे जहनों में आती रहती हैं। पहले तिमुथियुस बाब 6 की तरफ जाते हैं। बाब 6 आयत 3 में ये लिखा है कि अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है। मसीह की बातें यानी खुदा की बातें किताब मुक़द्दस की सही बातें हैं, ताहम शैतान की बातें सही बातें नहीं हैं, वो सब झूठ होती हैं। इसीलिए हमें खुदा के कलाम को मानना चाहिए। ऐसा करने की गर्ज से हमारे ख्यालात की मुताबिकत खुदा के कलाम से होने चाहिए। आयत 3 से दोबारा पढ़ते हैं। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो क्या है? मगरूर है और कुछ नहीं जानता, जिसका मतलब है कि वो खुदा के कलाम से गाफिल होगा, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अकल कैसी है? बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफाही का जरिया समझते हैं।
ہمیں خدا کے کلام کو ماننا چاہیے اور خدا کے کلام کی منادی کرنی چاہیے۔ عورت کی باقی اولاد کو یعنی خدا کی اولاد کو خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے اٹھتے ہیں، روحانی جنگ ہونے کو ہے۔ شیطان ساری دنیا کو دھوکے کی راہ پر لے جا رہا ہے، مگر خدا ہمیں نجات کی راہ کو لے جا رہے ہیں، یعنی اس راہ کو جہاں ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیوں شیطان سبت دن کو ختم کرنا چاہتا ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے؟ دانیل نبی نے کہا تھا وہ مقررہ اوقات و شریعت کو بدلتا ہے۔ خدا کے خلاف کھڑے ہونے والے کیوں مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ سبت کے دن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کا نشانہ خدا کو اور خدا کے لوگوں کو شدید ضرب لگانا ہے۔ خدا نے ہمیں کہا سبت کا دن میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ ہمیں سبت کا دن ماننا چاہیے۔ سبت وہ دن ہے جب ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو آسمانوں اور زمین اور ان کی ہر چیز پیدا کرنے کی قوت کے لیے جلال دیتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ وہ اپنے سب فرزندوں کو آسمانی خطوں میں لائیں گے۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خدا کیسے آسمانی خطوں میں جانے والوں اور ابدی جہنم کی آگ میں جانے والوں میں امتیاز کریں گے؟ ہمارے پاس ایک یقینی نشان موجود ہے۔ کیا اسی لیے خدا نے نہیں کہا تھا کہ وہ فسح کو نشان کے طور پر ہمارے ماتھوں پر لگائیں گے؟ جو لوگ خدا کے احکام میں قائم رہیں گے اور جو نہیں رہیں گے، خدا ان میں ایک فیصلہ کن تفریق کرتے ہیں۔ کیوں شیطان ہمیں سبت ماننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اور یروشلم ہماری آسمانی ماں کے درمیان عداوت ہے، جیسا کہ خدا نے کہا تھا کہ میں عورت اور تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اس لیے شیطان انسانوں کو اس راہ سے مخالف راہ کو لے جاتا ہے جس پر ماں انہیں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مکاشفہ باب 12 کے مطابق اژدہا عورت کی باقی اولاد سے لڑنے کے لیے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ سمندر کی ریت پر کھڑا ہوتا ہے۔ واحد ادارہ جو اس زمین پر شیطان کے خلاف لڑ سکتا ہے وہ عورت کی باقی اولاد ہے۔ اگرچہ لگتا ہے کہ بہت سے مختلف فرقے ہیں، پر دراصل وہ سب ایک ہی ہیں۔ چاہے جو بھی مشکلات ہمیں درپیش ہوں، ہمیں خدا کے احکام ماننے چاہیے۔ صحیح؟ ہم سبت کے دن کو دنیا کی کسی چیز سے بدل نہیں سکتے۔ ہم عورت کی باقی اولاد بنیں جو خدا باپ اور خدا ماں کی یعنی الہیم خالقوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں جلال دیں، امید کرتے ہوئے کہ جب تک کہ ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں پہنچ نہ جائیں ہم باپ اور ماں کی راہ پر چلیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔